Hello students, welcome to science class. So in previous class we have discussed about the earthquake, what are the causes of earthquake, and in today we will discuss about the protection against earthquake, and we will finish this chapter today only, and we will discuss the exercises. Okay, and from tomorrow we will start, that is chapter number it is 16, that is life. Okay, so protection against, there is one more thing, seismograph, जो क्या होता है, किस लिए होता है, they measure the earthquake. ठीक है, वो seismograph क्या करता है, मतलब it's a kind of instrument which are recorded कि earthquake आपका कितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड पे है. ठीक, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि अर्थक्वेक कितने ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, कि 7 से ज्यादा है, 5 है, उसको बताता है. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द ट्रिमर्स प्रोड्यूसेस waves on the surface of the earth. These are called seismic wave. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which start vibrating when a tremors occur. A pen is attached to the vibrating system. When a pen records the seismic waves on a paper which moves around it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake, as shown in figure 15.14. They can be also estimated its power to cause a destruction. तो ये देखो, ये इस तरह का होता है, इसमें पेंडुलम होती है और इसमें एक रोटेटिंग ड्रम होता है. तो जितनी भी तेज अर्थक्वेक रहती है, ये इसमें इस तरह से वेव्स बनती हैं. ठीक, अगर इस तरह बनी है छोटी छोटी तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, कम है. ठीक, और अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बनी है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक. We know from the earlier pages that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precaution to protect ourselves all the time. People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern building technology can make it possible. तो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स उसके इस तरह से होने चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आए तो भी उसको उतना हार्म ना हो. ओके, इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज अ क्विक सेफ. क्विक सेफ मतलब अर्थक्वेक सेफ. Consult qualified architects and structural engineers. It is highly seismic areas. The use of mud or timber is better than using its heavy construction material. Keep roofs as light as possible in case the structure falls. The damage will not be heavy. तो जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मड वगैरह से मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे मड वगैरह से घर बने होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मड वी यूज कि वो एक बिल्डिंग हो और सीमेंटेड से कंस्ट्रक्ट हो. ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, रूफ मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके, जिस लिमिट तक पॉसिबल हो सके, रूफ उसका क्या रखा जाए, लाइट वेटेड रखा जाए, ताकि अगर अर्थक्वेक आए भी और रूफ उसका फॉल भी करे तो ज्यादा डिस्ट्रक्ट ना हो. It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. सो कबर्ड वगैरह और शेल्फ वगैरह इस तरह से फिक्स हो वॉल में कि वो बहुत इजीली फॉल ना हो अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक भी हो रहा है तो. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. Same thing, जो आपकी वॉल हैंगिंग वाली क्लॉक होती है, फोटो फ्रेम्स होता है, वाटर हीटर्स होता है, ये सारे भी ऐसे फिक्स होने चाहिए कि ये बहुत इजीली पीपल पे ना गिर जाए. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipments in working order. So, जो फायर इक्विपमेंट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, ये सारे बिल्डिंग्स में प्रॉपर होने चाहिए. और होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ होने चाहिए, दे शुड बी इन प्रॉपर वर्किंग. ओके,
Next is the Central Building Research Institute, Roorkee, has developed know-how to make quick-resistant houses. In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. तो आप घर के अंदर रुड़की एक क्या बोलते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने एक डेवलप किया है क्विक रेजिस्टेंट हाउस, ठीक है. और देयर आर द पॉइंट्स विच यू डू इन योर होम एंड व्हेन यू आर आउटडोर्स. ठीक. Take shelter under a table. Stay there till the shaking stops. अब अगर आप घर में हो और कोई ऑप्शन नहीं है कि that you can move and run out the houses, तो आप देखो कि कोई भी ऐसा टेबल हो या ऐसा कोई इतना टेबल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंडर आप छुप सको. Stay away from tall and heavy objects that may fall on you. As we have discussed before कि ऐसे ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है जो हैंगिंग पोजीशन पे है, जो जिसका इजिली गिर सकता है. जो इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. पिलो से यू शुड प्रोटेक्ट योर हेड. इफ यू आर आउटडोर्स, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड. अब अगर आप घर के बाहर हो तो आप ऐसी एरिया चूज करो कि आप बिल्डिंग से दूर हो, ट्रीज से आप दूर हो, या फिर कोई ऐसा कोई पावर लाइन हो जो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह जाते हैं, आप उससे भी दूर खड़े रहो. ठीक है. इफ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट. डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप. अगर आप कार या बस में हो तो आस्क योर ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली, मतलब आप ड्राइवर को बोलो कि आप वो गाड़ी जो है वो स्लो चलाए और बाहर मत आइए. ठीक है. सो दैट्स ऑल. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजिली बाय फ्रिक्शन. ओके. ऑप्शन 1 प्लास्टिक रॉड. Option B, a copper rod. Option C, an inflated balloon. Option D, a woolen cloth. So, मैंने पहले ही बताया था, क्या पूछा है? Which of the following cannot be charged easily by friction. ठीक है. मैंने बताया था कि जो ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही हम चार्ज कर सकते हैं, जो मटेरियल कंडक्टिंग है हम उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी इजिली चार्ज बाय फ्रिक्शन. कॉपर इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल. कॉपर जो है इन सब में, इन चारों में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन सा है? कॉपर. तो कॉपर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Therefore, a copper rod cannot be charged easily by friction. ठीक है. You can easily charge a plastic rod, you can easily charge an inflated balloon and a woolen cloth. एक्टिविटी में बताया था बैलून को भी हम इजिली चार्ज कर सकते हैं और क्लॉथ को भी हम इजिली चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर इंसुलेटर्स. ओके. कॉपर रॉड, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड. कॉपर रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, silk cloth and the rod, इसमें आपको बताना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. ऑप्शन क्या क्या है? वेट अ मिनट. ऑप्शन इज ऑप्शन ए, and the cloth both acquires positive charge. Option B, and the option B is becomes positively charged while the
cloth has a negative charge, C, and the cloth both acquires negative charge, D, becomes negatively charged, while the cloth has a positive charge. ठीक, इसमें क्या पूछे हैं कि मैंने ग्लॉस रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो रॉड में क्या कौन से चार्ज आएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम्स द, ये वाला, the rod becomes positively charged while the cloth has the negative charge. Okay? और ऐसा क्यों है? So when an object is charged by rubbing it against one and another object, the two objects get oppositely charged. ठीक है? By convention, it is considered that the charge acquired by the glass has rod is positive and a charge acquired by cloth is negative. Therefore, the rod become positive charge and the cloth becomes negatively charged. तो जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो आपस में, तो ये तो ऑब्वियस है कि दोनों क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? ऑपोजिट चार्ज है, इसीलिए दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. ठीक, तो इस केस में कंसिडर किया जाता है कि जो आपका रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और आपका क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज है. 3. Write T against true and F against false in the following statement. First one, like charges attract each other. तो ये तो obvious है. Like charges क्या करते हैं? They attract each other. No, they repel each other. So this statement is false. Second one, a charged glass rod attract a charged plastic straw. तो ये क्या है? True. ठीक है? A charged glass rod has a positive charge and a surface on its surface, while a charged plastic straw has a negative charge on its surface. Since unlike charges attract each other, a charged glass rod attracts charged plastic straw. ठीक है? क्यों? क्योंकि unlike charges क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो दोनों में क्या है? ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सी क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. तो ये तो पहले ही बताया था, लाइटनिंग कंडक्टर तो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को. ठीक है? जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो फ्लो करते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म वगैरह कंडक्ट होता है, वो सारे क्या करते हैं? आपके टॉल बिल्डिंग्स में उस कंडक्टर में आ जाते हैं और उस कंडक्टर में होते हुए कहाँ चले जाते हैं? वो अर्थ में चले जाते हैं. तो दे प्रोटेक्ट द बिल्डिंग. अगर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है तो बिजली जब गिरती है तो इंस्टेड ऑफ कंडक्टर के ऊपर गिर रही है, वो सीधे कहां गिर जाएगी? आपकी बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. हो सकती क्या है? हो ही जाएगी. सारे एटमॉस्फेरिक चार्जेस को वो लेके, एटमॉस्फेयर में जितने चार्जेस हैं उसको लाइटनिंग कंडक्टर को लेके क्या करेगी? अर्थ में भेज देगी. ठीक है? डायरेक्टली. Next one is earthquake can be predicted in advance. No, पहले बताया था. We can predict the volcanic eruption. We can predict the जो आपकी साइक्लोन्स, बाढ़ वगैरह जो आता है, you can predict that. साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे, इस डेट पे आ सकता है, बट हम earthquake को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं इन्वेंट किया है कि जो आपका डिटेक्ट कर सके earthquake को. ओके? नेक्स्ट वन इज क्या है? समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स. तो ये बताया था कि आपके स्वेटर और आपकी बॉडी के बीच में क्या है? दोनों के बीच में चार्ज है. क्या होता है? व्हेन स्वेटर इज टेकन ऑफ, द
वुलन स्वेटर गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो दो बॉडी के बीच में क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता ही होता है, जिसके थ्रू जब आप वुलन क्लोथ्स निकालते हो विंटर में तो उसमें से आपको एक हल्का सा स्पार्क या क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। ओके, और इसीलिए यू हियर द क्रैकलिंग साउंड इन विंटर। Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. So, when we touch a charged object, our body conducts its charge to the earth. That's why the charged body loses its charge if we touch it with the hand. This phenomenon is known as electric discharge. तो ये उस एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था, when you take one jar and you put a perpendicular cardboard on it and then you make the hole on that cardboard and you put that cardboard perpendicular and then you hang that cardboard with two aluminum foil and then you touch that aluminum foil with a charged ripple. So उसमें आपका क्या करता है, वो चार्ज हो जाता है, वो एक दूसरे से क्या करता है, रिपल कर जाता है। ठीक है, नहीं इसमें तो खैर ये एग्जांपल, हाँ, और इसमें एज सुन एज व्हेन यू टच दैट एल्यूमिनियम फॉइल, उसमें क्या करता है, जो उसमें चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्ट आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक, और वो अर्थ में चले जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सारे जो चार्ज होते हैं वो आपसे बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measured 3 on the scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? तो कौन सा earthquake को मेजर करने के लिए कौन सा है, रिचर स्केल। ठीक है, और इस स्केल का जो रीडिंग है वो कितने से कितने के बीच में होता है, 1 to 10 के बीच में। ओके, 1, this is 10, 2, 3, 4 and so on. Okay, the reading of magnitude 3 on the Richter scale would be recorded by a seismograph. If the Richter scale gives a reading of magnitude 3, then the earthquake is not likely to cause much damage. Generally, the magnitude higher than 5 is constructed to destructive in nature. तो अगर 3 के स्केल पे, अगर रिचर स्केल पे आया है मैग्नीट्यूड, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, बट अगर 5 आया है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस करता है। ठीक, अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया 7.5 इंडिया में। ठीक है, भुज में। हाँ, नेक्स्ट वन, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। तो सही है, तो नॉर्मल है। स्टे in completely closed place. If you are moving in a car, they remain until the lightning is over. Close the windows of the car immediately. Do not touch electrical wires, telephone cables, metal pipes, etc. Do not bath in a running water. They may cause electric shock. तो अगर आप बाहर हो, कार में हो, तो आप कार का जो खिड़की वगैरह है वो शट डाउन कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल से और जो टेलीफोन वायर्स वगैरह है इससे आप दूर रहो, और रनिंग मतलब ये अवॉइड करो कि आप उस टाइम डू नॉट टेक द बाथ इन अ रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर है उससे आप अवॉइड करो, क्योंकि वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वन, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another uncharged balloon. तो अगर आपका दोनों चार्ज बैलून है तो वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में ही सेम चार्ज है। बट अगर आपका एक जो बैलून है वो चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, ठीक है, देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, क्योंकि एक आपका चार्ज है और एक आपका अनचार्ज है। द नेचर ऑफ, इसको देखो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द नेचर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ चार्ज बैलून आर सिमिलर। ठीक है, सिंस like charges repel each other, everyone know. Two charged balloons repel each other. When a charged balloon is brought near to the uncharged body, the uncharged body acquires charges on its surface caused by an induction of charge. The charges are of opposite return nature in relation to the charged body. Since unlike charges attract each other, and a charged body always attract an uncharged body, hence an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. यही तो अभी तक बताते आ रहे हैं। Describe with the help of diagram an instrument which can be caused to detect a charged body.
ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज योर होमवर्क। ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, ओके। और कौन सा क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 and 12, these are homework. Question number 9, question number 10, question number 11 and 12, okay. 9, 10, 11, 12, yeah, homework hai, okay, do it. Okay, that's all for today, and we will meet tomorrow with a new chapter, that is light. Okay, thank you class, thank you so much.